Colossians chapter 3 verses 1 to 4. कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 4 आयत. Let me read in English, then you can go in Hindi. And it says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your minds on things above, not on things on the earth, for you died and and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. आमीन. Amen. आइए हम हिंदी में पढ़ें. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है. जब Now, friends, we are living in a generation that knows the price of everything but do not understand the value of eternity. मेरे प्रियो, हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जिस पीढ़ी के लोग हर एक चीजों की कीमत को जानते हैं लेकिन अनंत काल की कीमत को नहीं समझते. We know everything. हम सब कुछ जानते We हैं. go for shopping. हम खरीदारी करने We जाते know हैं. online things. हम ऑनलाइन खरीदारी करते We हैं. know price of everything. हर एक वस्तुओं की कीमत हमें मालूम है. People know the iPhone 17 what it costs. लोगों को मालूम है आईफोन 17 की कीमत कितनी है. People know how much this dress costs. और लोगों को मालूम है ये कपड़े की कीमत क्या है. People know how much the hair artist, the hair job costs. और लोगों को मालूम है ये बाल बनाने की कीमत क्या है. People know how much the beauty parlor costs. लोगों को मालूम है ब्यूटी पार्लर की कीमत क्या है. But somewhere they're missing the value of eternity. लेकिन कहीं ना कहीं वो अनंत काल को, उसकी कीमत को खो रहे हैं. They are missing the price of the eternity. वो अनंत काल की कीमत को खो रहे हैं. And there are people और ऐसे लोग हैं who are ready. They are preparing for their retirement. जो तैयार हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए भी तैयार हैं. So their house is built up. तो उनका घर बन चुका है. They have their children set up. उनके बच्चे सेटल हो गए हैं. They're all settled. वो सभी सेटल हो चुके हैं. They have their medical insurance. उनका मेडिकल Their इंश्योरेंस health हुआ है. insurance. उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस They है. have their LIC insurance. उनके पास उनका LIC इंश्योरेंस They भी are है. all set for their retirement. अपने रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल वो सेट हो चुके हैं. But they are not set for the judgment day. लेकिन वो न्याय के दिन के लिए तैयार नहीं है. They do not understand how to prepare ourselves for the judgment day. वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार कैसे करें. Everybody is preparing for the retirement. हर कोई रिटायरमेंट के लिए तैयारी कर रहा है. When I get old, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, I must have all the facilities. मेरे पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए. You know, house is very important. अब देखिए, घर होना बहुत जरूरी है. In the old age, पुराने दिनों में I must have my own house. लोग कहते थे हमारे पास हमारा घर होना जरूरी है. Hallelujah. हालेलुया. And how long an old man or old woman can survive in that house? और अपने घर में एक बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी स्त्री कितने दिन तक अपने घर में वो जिंदा रह Maybe सकती है. another 30 years or 40 years. हो सकता है अगले 30 और 40 साल और. But then Jesus said, लेकिन फिर यीशु मसीह ने कहा, I am going to prepare another house for you. मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक और घर तैयार करने जा रहा हूं. And after your old age, और तुम्हारे बुढ़ापे के दिनों के and बाद, once you finish your assignment here on the और earth, इस पृथ्वी पर तुम्हारा काम खत्म होने के बाद, and once you die, जब तुम मर जाओगे, you will go to the another house. तुम एक दूसरे घर में जाओगे. And not the house which is built by bricks and cement, और ईंट और सीमेंट के द्वारा बना हुआ वो घर नहीं होगा, but the house that is built by me, लेकिन वो घर मेरे द्वारा बना होगा, built by my Father. मेरे पिता के द्वारा बनाया And गया in होगा. that house, और उस घर में you will not live for 30 or 40 years, तुम 30-40 साल के लिए नहीं जियोगे, but you are going to live for eternity. लेकिन तुम अनंत काल के लिए उस घर में जियोगे. You are going to live forever. तुम हमेशा के लिए जीने वाले You हो. will not die again. तुम फिर से मरोगे नहीं. You will not see the pain again. तुम दर्द फिर से नहीं देखोगे. You will not see the sickness तुम again. फिर से बीमारी नहीं देखोगे. You are not going to face the struggles again. फिर से संघर्षों का सामना नहीं करोगे. You don't have to go to office to get money. तुम्हें पैसा कमाने के लिए ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा. You don't need to do any hard work. तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी No पड़ेगी. tears. कोई आंसू नहीं बहेंगे. pain. कोई दर्द नहीं होगा. shame. कोई शर्म नहीं होगी. Everything is paid in full. हर एक चीज की कीमत पहले से ही पूरी Come on, चुका दी somebody गई है. shout to the Lord. कोई जोर से हालेलुया कहे प्रभु के लिए.
We know how to build career, हमें ये पता है कि करियर मुझे कैसे बनाना है, how to build house, कैसे घर बनाना है, how to build reputation. कैसे मुझे अपने नाम को बनाना है, But very few recognize or know how to build a life that heaven recognizes. लेकिन बहुत थोड़े ही ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि जो जीवन स्वर्ग पहचानता है उसे कैसा बनाना है। All of your life you work and get retired and build a house. और आप पूरे जीवन भर काम करते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं, घर बनाते और रिटायर हो जाते हैं। The tragedy of our age is not that people are living badly. और हमारे इस पीढ़ी की दुख की बात ये नहीं है कि लोग बुराई का जीवन जी रहे हैं। No. नहीं। The tragedy of our age is people living small. और हमारे पीढ़ी की दुख की बात ये है कि लोग छोटा जी रहे हैं। They're living for two small things. वो बहुत ही छोटी चीजों के लिए जी रहे हैं। A life can be full and still empty. एक जीवन पूरा होकर भी खाली हो सकता है। Successful and yet not having insights. सफल होकर भी गहराई से रूबरू नहीं होगा। God never created any one of us just to survive on the earth. परमेश्वर ने हम में से किसी को भी बस पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए नहीं बनाया था। He created us to do something. उसने हमें कुछ करने के लिए बनाया। We are not here to eat, sleep and go. यहाँ पर हम खाने के लिए, सोने के लिए और बस जाने के लिए नहीं है। We are not here just to be born and get married, get settled, eat, sleep, make house, then the next generation. No. यहाँ पर हम बस इसलिए नहीं है कि हम पैदा हों, हम पढ़ाई लिखाई करें, पैसा कमाएं, घर बनाएं और उसके बाद जाने के बाद दूसरी पीढ़ी आए और वही काम वो भी करें। I don't know how broken you feel. मैं नहीं जानता आप कितना टूटा हुआ महसूस करते हैं, How useless you feel. कितना ज्यादा बेकार आप अपने आप को महसूस But I करते हैं। can tell you something. लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, When God sees you, जब परमेश्वर आपको देखता है, God not just sees you as a survivor. परमेश्वर बस आपको जिंदा रहने वाले के रूप में नहीं देखता है, God sees you as a assignment. परमेश्वर एक काम के रूप में आपको देखता है। God sees you a life with purpose. परमेश्वर देखता है एक जीवन जिसके पास मकसद है। God has called you to influence the world. परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप दुनिया पर प्रभाव डालें। God has not called you to just to survive. परमेश्वर ने आपको सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बुलाया है। God has not called you to sleep and eat परमेश्वर and ने आपको sleep. सोने के लिए, खाने के लिए, फिर सोने के लिए नहीं बुलाया है। God has called you to influence the world. परमेश्वर ने दुनिया पर अपना छाप छोड़ने के लिए, प्रभाव डालने के लिए बुलाया है। I don't know if you're broken. मैं नहीं जानता अगर आप टूटे हुए हैं, I don't know if you're in pain. मैं नहीं जानता अगर आप दर्द में हैं, I don't know if you think your life is over. अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरा जीवन बस खत्म हो चुका है, But God says, लेकिन परमेश्वर कह रहा है no, that's your vision. नहीं, ये तू सोच रहा है That is you. That is how you watch और things. तू ऐसे, तेरी सोच है, तू ऐसे ही देखता है। But I see it differently. लेकिन मैं अलग देखता हूँ। I see you as a warrior. मैं तुझे एक योद्धा के रूप में देखता हूँ। You may be crying, तू रो रहा होगा, but you will wipe out the tears of others. लेकिन तू दूसरों के आंसुओं को पोंछेगा। You are maybe crying, हो सकता है तू रो रहा हो, you are maybe हो defeated, सकता है हारा हुआ महसूस कर but रहा you हो, will be the reason of others' victory. लेकिन तू दूसरों की जय का कारण बन जाएगा। You are not small. तू छोटा नहीं है, You are not the तू tail. हटपूच नहीं है। I have chosen you. मैंने तुझे चुना है, Not anybody. किसी और ने नहीं। I, your God. मैं जो तेरा परमेश्वर हूँ, I have called you. मैंने तुझे बुलाया I है, have chosen मैंने you. तुझे चुना है, I have appointed you. मैंने तुझे नियुक्त किया है। You are not what you think you तू are. वो नहीं है जो तू सोच रहा है। Your life is tough. तेरा जीवन बहुत मुश्किल Your से life है, has pain. तेरे जीवन में दर्द You है, are afraid. तू डरा हुआ है, But God is calling somebody. लेकिन परमेश्वर किसी को बुला रहा है। God is calling somebody. परमेश्वर किसी को बुला रहा है। Come out. क्यों बाहर निकल, Come out. ऊपर आ जा। I am going to use you. मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूँ, I am going to use you मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला to हूँ change something. कुछ बदलने के लिए। Come on, somebody give praise to Jesus. कोई जोरदार स्तुति दे प्रभु को। Praise Jesus. जब आप मसीह यीशु में हैं, You may be a housewife, हो सकता है आप घर पर रहने वाली पत्नी हो, but you are not an ordinary person. लेकिन आप साधारण नहीं हैं। The day you became God's children, उस दिन जिस दिन आप परमेश्वर की संतान बने थे, you are no more ordinary. आप उस दिन से साधारण नहीं रहे। Many think
बहुत से सोचते हैं I'm an ordinary person. मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। Yes, you were an ordinary जी person. हाँ, आप साधारण थे, But when God called you, लेकिन जब परमेश्वर ने आपको बुला लिया, He made you an extraordinary उसने person. आपको साधारण से ऊपर उठाकर असाधारण बना दिया। Your enemies are shocked. आपके दुश्मन हैरान हैं। Your enemies are shocked. आपके दुश्मन हैरान हैं। Your oppositions are shocked आपके विरोधी हैरान हैं to see your blessed life. आपके आशीषित जीवन को देखकर। They thought you're finished. उन्होंने सोचा था कि आप खत्म हो चुके हैं, Oh, but your story tells a different thing. लेकिन आपकी कहानी कुछ अलग ही बयां करती है। They thought you're gone. उन्होंने सोचा कि आपकी कहानी खत्म हो गई, But now they see you as a fruitful person. लेकिन अब वो आपको एक फलवंत व्यक्ति के रूप में देख रहे They हैं। see you as a blessed man वो and आपको woman. एक आशीषित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। Come on, somebody. क्या कोई सुन रहा Am I है? talking to somebody? आप हारे हुए नहीं हैं। You are not a loser. आप हारे हुए नहीं हैं। Did you listen what I क्या said? आपने सुना जो मैंने कहा? God is telling somebody you're not a परमेश्वर किसी से कह loser. रहा है आप हारे हुए नहीं हैं। You are victorious. आप जयवंत हैं। You are called. आप बुलाए गए You हैं। are chosen. चुने गए हैं। You are anointed आप अभिषिक्त हैं। and appointed by आप God. नियुक्त किए गए हैं Can परमेश्वर I के द्वारा। see? Can I hear an amen? क्या मैं जोरदार आमीन सुन सकता हूँ? Ooh, glory. Number 1 point. सबसे पहली बात, A higher calling produces a higher life. एक बड़ी बुलाहट एक बड़े जीवन को पैदा करती है। A higher calling produces a higher life. एक बड़ी बुलाहट एक महान जीवन को पैदा करती है। Let's see what is written in Colossians chapter 3 verse 2. आइए देखिए कुलुस्सियों 3 के 2 में क्या लिखा है। It says, यहाँ पे ये लिखा है, set your affection on things above. तुम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सब लोग बोलिए, पृथ्वी पर नहीं पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान परंतु लगाओ. स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। Once again, come on. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। Paul does not first change the behavior. पौलुस सबसे पहले बर्ताव बदलने की बात नहीं कर रहा है, Because Paul knows क्योंकि पौलुस जानता है you cannot change the behavior until you change the vision first. आप किसी का बर्ताव तब तक नहीं बदल सकते जब तक उसके दर्शन को पहले ना बदलें। Paul is telling us, पौलुस हमसे कह रहा है let's fix your eyes upon the heaven above. कि आओ हम अपनी आंखों को पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर लगाएं। Now, listen to this one. अब सुनिए इस बात को। Why some people are bitter? क्यों कुछ लोग कड़वाहट में रहते हैं? Why some people are jealous? क्यों कुछ लोग जलन में रहते हैं हमेशा? Why some people are bothered about others' life? क्यों कुछ लोगों को हमेशा दूसरों के जीवन की चिंता रहती है? Why they are more concerned what others are doing? क्यों हमेशा उनको इस बात की परवाह रहती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं? What others are wearing? दूसरे क्या पहन रहे हैं? What others are doing? दूसरे क्या कर रहे हैं? Why some people are not able to forgive? क्यों कुछ लोग माफ नहीं कर पाते? Why some people always see क्यों negativity? कुछ लोग हमेशा नकारात्मक ही देखते हैं? Why they are always bitter? क्यों हमेशा वो कड़वाहट में रहते हैं? Because क्योंकि their eyes उनकी आंखें are fixed on earthly things. पृथ्वी की वस्तुओं पर लगी हैं। And Paul says, और पौलुस कहता है you cannot fix these people. कि तुम हो सकते हैं इन लोगों को ठीक ना कर पाओ। You cannot fix these तुम इन लोगों people. को ठीक नहीं कर सकते। Why you cannot fix them? क्यों तुम इन्हें ठीक नहीं कर सकते? To fix the behavior, इन बर्ताव को ठीक करने के लिए first you need to fix the vision. पहले तुम्हें उनके नजरिए को उनके दर्शन को ठीक करना पड़ेगा। If I'm watching on earth, अगर मैं पृथ्वी पर देख रहा हूँ I will behave like an earthly तो man. मैं पृथ्वी के मनुष्य के समान ही बर्ताव करूंगा। But if I'm watching in heaven, लेकिन अगर मेरी आंखें स्वर्ग पर लगी है then I will act like a heavenly तो मैं person. स्वर्गीय व्यक्ति के समान ही बर्ताव करूंगा। Oh, come on. Oh, come on. क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Those, yeah, give me, yeah, this one.
when they were crucifying him, जब वो उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, what they were thinking? वो क्या सोच रहे थे? We are killing him. हम इसको मार रहे They हैं। were so happy. वो बहुत खुश थे उस बात से। Killing Jesus. यीशु को मार रहे थे, Killing the God of this universe. इस ब्रह्मांड के परमेश्वर को मार रहे Now थे। everybody was killing him. अब सब लोग उसको मार रहे थे, Everybody was killing और him. सब लोग उसको मार रहे थे, Nailed him on the cross. और उसको क्रूस पर कीले ठोक दी, Pierced him here. और उसके यहाँ पर भाले से भी घोपा, And they thought we are finishing his और life. उनको लगा कि इसके जीवन को हम नाश कर रहे हैं। Now Jesus, अब यीशु मसीह, what Jesus was saying, यीशु मसीह क्या कह रहा he था? said, Father, उसने कहा पिता, Father, पिता forgive them. इन्हें क्षमा कर, Father, पिता forgive them. इन्हें क्षमा कर, Father, पिता forgive them. इन्हें क्षमा कर। They do not understand. ये नहीं समझते हैं, They don't know ये नहीं जानते what they are doing. कि ये क्या कर रहे हैं। Why? क्यों क्यों क्यों? Because the eyes of Jesus क्योंकि यीशु की was आंखें not fixed on what is happening. वो जो हो रहा था पृथ्वी पर, उस पे Here on टिकी the हुई थी, earth, पृथ्वी पर His नहीं। eyes was fixed what is happening in उसकी heaven. आंखें जो स्वर्ग में हो रहा था उस पर लगी हुई थी। On the earth, पृथ्वी पर they thought he's losing. उनको लगा कि वो हार रहा है। On the earth, he was like a loser. पृथ्वी पर वो एक हारे हुए व्यक्ति के समान था, But in heavenly realm, लेकिन स्वर्गीय क्षेत्र में, in heavenly realm, स्वर्गीय क्षेत्र में he is getting the victory. वो जय पा रहा था। He is watching all of us. वो हम सबको देख रहा था, He could see all of वो us. हम सबको देख सकता था। He was not dying and losing. He was dying and getting the victory. वो मर कर हार नहीं रहा था, लेकिन वो मरते समय जय पा रहा था। Death was not defeating him. मृत्यु उसे हरा नहीं रही थी, He was defeating the death. वो मृत्यु को हरा रहा था। Come on, am I talking to क्या मैं somebody? किसी से बात कर रहा हूँ? For that moment, उस क्षण के लिए people were thinking he's dying. लोग सोच रहे थे वो मर रहा है। No, he was not dying. नहीं, वो मर नहीं रहा था। That is why he said, इसीलिए उसने कहा, nobody can take my life from कोई me. मेरे जीवन को, मेरे प्राण को मुझसे नहीं ले And that's सकता। why he said, और इसलिए उसने कहा, Father, पिता, now पिता, I give my spirit अब into your hand. मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ। Nobody can take it. कोई उसे ले नहीं सकता है, Nobody can kill कोई me. उस मुझे मार नहीं सकता Nobody है, can touch me. कोई मुझे छू नहीं सकता Nobody है, can harm me. कोई मेरा नुकसान नहीं कर But सकता। I give my life to you. लेकिन मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। And as he said, और जैसे उसने कहा, he rose again on the third day. वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। What happened? और क्या हुआ? He defeated the death. उसने मृत्यु को हरा दिया। He defeated the death. उसने मृत्यु को हरा दिया। Can you shout hallelujah? क्या आप जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? Go on. You want to listen like an Indian. आप भारत के जैसे सुनना चाहते हैं, विश्वास नहीं कर सकते। You don't trust strangers. आप अनजाने व्यक्ति पर भरोसा नहीं रखते। You don't trust outsiders. आप बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं करते जिसे आप जानते भी नहीं। You don't even trust the cab drivers. आप कैब ड्राइवर्स पर भी भरोसा नहीं करते हैं। But listen this one. लेकिन सुनिए इस बात को, You only trust the people you know. आप केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करते हैं जिन्हें आप जानते हैं। Why we trust God? क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? Because we know God's character. क्योंकि हम परमेश्वर के चरित्र को जानते हैं That one thing, कि एक चीज, God never lies. कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। So if he said he will bless तो you, अगर उसने कहा है कि वो आपको आशीष देगा, it means he will bless तो you. इसका मतलब वो आपको आशीष जरूर देगा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If he said I will never leave अगर you, उसने कहा था कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, then be assured he will never leave तो you. विश्वास रखिए क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। How many are listening? कितने लोग सुन रहे हैं? Amen. Amen. We know God's character. हम परमेश्वर के चरित्र को जानते That हैं my God कि मेरा परमेश्वर never lies. वो कभी झूठ नहीं बोलता है। My God मेरा परमेश्वर never lies. कभी झूठ नहीं बोलता Now है। number 2. अब दूसरी बात, What is number 2? दूसरी बात क्या है? We know our God is faithful. हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। Everybody can leave me, हर कोई या सब लोग मुझे छोड़ सकते हैं, but my God will never leave लेकिन me. मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। Hello? क्या आप सुन रहे हैं? Amen.